Okay, so let's begin. मैं थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर है उसको रिवाइज करता हूँ पहले, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे. So last time we started working with the variation method. और ये जो मेथड है इसकी मदद से हम जो आइगन एनर्जीज हैं उनके अपर बाउंड्स कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है. और ना सिर्फ आइगन एनर्जीज के अपर बाउंड्स बल्कि जो अप्रोक्सीमेट आइगन फंक्शंस हैं किसी भी हैमिल्टोनियन के वो भी साथ के हमें मिल जाते हैं. एंड वी लास्ट टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द extension of the method to n states instead of just the ground state. And we said that if we assume our trial function to be of this form, where these fi's are linearly independent functions that satisfy the boundary conditions that we want to be satisfied by phi. And we saw that if we assume this phi and we minimize this ratio of integrals, then we can get an equation like this, that sum over ck hki is equal to sum over ck ski, where k goes from where 1 to n, and we have n such equation for each I. And if we rearrange it, we can write it like this. Sorry, there is a W here. And if we rearrange it, we can write it like this. Sum over K, HKI minus W SKI into CK equals 0. And this becomes a system of homogeneous equations, which will have a non-trivial solution only if the determinant of these coefficient matrix is 0, because then it would be singular, and we can find a solution CK for each value of W. So essentially, we have this system of equations H11 my हाँ, इसको पहले तो इसको वर्कआउट किया, फिर we took the derivative of W with respect to CIs and put them 0 each CI. So then we got n equations. जी जी हाँ. So I'm just revising the previous one. So S11 H12 minus W S12 all the way to H1n minus W S1n, and then H21 minus S21 H22 S22. So ये जो मैट्रिक्स है इक्वल 0. सो ये है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व करना है. और उसके लिए इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की जरूरी है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, व्हिच मीन दैट वी हैव this equation to solve that we can write symbolically like this. So this determinant equals 0. This is called the secular equation. So इस secular equation के जो solutions हैं वो हैं W1, W2 all the way to Wn, and if we arrange them in this ascending order, then
This is an upper bound for E1, upper bound for E2, all the way to upper bound for En. And then for each of this W solution, तो तरीका ये है कि जितने ये W's निकले हैं इसको हम वापस लेके जाएंगे, पहले W1 पुट करें W की जगह पे और इस सिस्टम को सॉल्व करें, तो हमारे पास एक C1, C2, Cn की वैल्यूज आ जाएंगी, उनको यहाँ पे यूज करें, तो जो आपके पास phi आएगा दैट इज योर आइगन फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट। अब जो सेकंड यहाँ से आंसर आया है W2, उसको इस मैट्रिक्स में यूज करें W की जगह पे एंड देन सॉल्व फॉर C1, C2 ऑल द वे टू Cn और उन कोफिशिएंट्स को यहाँ पे यूज करें, यू विल गेट अनदर फंक्शन phi दैट इज योर आइगन फंक्शन फॉर द सेकंड स्टेट एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो आज जो है वो हम एक एग्जांपल करते हैं, और बाय द वे इसमें ये जो H और S हैं वो इस तरह से डिफाइंड है। H Ij is this integral, Fi star H Fj beta, और जो Sij है it is just this overlap integral beta. So these are how these are defined. Let's do an example. For example हम करेंगे for a problem जिसके analytical solutions already known है, ठीक है, and that is the one-dimensional infinite quantum well. इसको quantum box भी कहते हैं, and it has a potential profile like this. Let's say potential is 0 when x is between 0 and L, and potential is infinity otherwise. So graphically I can represent it like this. This is x-axis, so here the origin and here x is equal to L. So इसकी length जो है वो L है। और अगर आप रिकॉल करें अपने elementary quantum physics के courses को, तो you will probably remember that the energies are quantized and they are given by this expression n square h square 8 ml square, I think. Yeah, without this h. Yeah, with h. h square के साथ या h bar के साथ? h square के साथ, ठीक है। नहीं, पाई आता है अगर इधर h bar हो। और जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो कोसाइन फंक्शंस हैं फॉर दीज स्टेट्स n1 n3 एंड सो ऑन, और साइंस हैं फॉर स्टेट n2 n4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह एक दो एक यूं करके हैं। और आप देखें इसमें जैसे ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड है, ये ऑड है, इसके ऊपर जो है वो फिर इवन है एंड सो ऑन, इस तरह से इसके फंक्शन है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एक मेन वजह ये है कि बाद में जो हम एनर्जीज मिलती हैं वी विल बी एबल टू कंपेयर विद द एग्जैक्ट एंड गेट सम इनसाइट कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी मदद से तो कैसे हमें जो एनर्जीज जो मिलती हैं उनमें एरर किस तरह से होता है। ओके, तो
जो पहला काम है हमारे लिए वो है दी चॉइस ऑफ बेसिस फंक्शन, जो एफ आईज हैं। तो लेट्स चूज दीज फंक्शंस। f1 जो है, लेट्स से इट्स x into l minus x when x is between 0 and l and it is 0 outside. अब देखें, ये मैंने फंक्शन इस तरह से चूज किया है कि जो रिक्वायर्ड बाउंड्री कंडीशंस हैं ये इनको सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री कंडीशन क्या है, अगर चूंकि पोटेंशियल यहाँ पे इन्फिनिट है तो हमारा जो वेव फंक्शन है उसको यहां भी जीरो होना चाहिए और यहां भी जीरो होना चाहिए, राइट? दैट्स द रिक्वायर्ड बाउंड्री कंडीशन। तो वो मैंने बाउंड्री कंडीशन एक तो खैर इससे भी इंप्लीमेंट कर दी है कि इट्स जीरो आउटसाइड, लेकिन अगर आप इस फंक्शन को भी देखें तो दिस इज आल्सो जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इट इज जीरो एट एक्स इज इक्वल टू एल। अब एक फंक्शन जो है वो हमने ये लिया है, सो लेट्स चूज अनदर फंक्शन f2 and I'm going to choose it as its square. और ये फंक्शन जो है ये भी जो बाउंड्री कंडीशन हमने इंप्लीमेंट करनी है उनको सेटिस्फाई करता है, और प्लस ये ऐसा फंक्शन है जो इससे लीनियर इंडिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं कि इसका सम और इसका सम जीरो उसी वक्त होगा अगर दोनों के कोफिशिएंट जीरो फॉर ऑल एक्स। अच्छा, अब ये जो दोनों फंक्शन है ये दोनों इवन फंक्शन है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर इसको x को हम इसके गिर्द इसको इनको रिफ्लेक्ट करें, दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू हाफ एल, सो दे आर इवन अराउंड दिस x इज इक्वल टू हाफ एल पॉइंट, राइट? आप इसको उसको प्लॉट करें, वो इस तरह से है, जो दूसरे वाला है वो थोड़ा यूं करके है क्योंकि स्क्वायर है, बट दे आर बोथ इवन अराउंड दिस थिंग। और इनको अगर हम यूज करेंगे तो ये हमें सिर्फ एनर्जीज देंगे जो इवन आइगन फंक्शंस हैं उनसे उनके करस्पॉन्डिंग। जो ऑड स्टेट्स हैं उनके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। सो चूंकि हमें प्रॉब्लम की फिजिक्स का अंदाजा पहले से है, so it's better to choose some odd functions in the basis as well. So let's choose a function f3 as this. मैं जस्ट जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जो f4 है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर मैंने इंप्लीमेंट इसके साथ लगाया है, इससे एक तो ये जो फंक्शन है ये इन दोनों से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ये देखें ये एक्स क्यूब में पोलिनोमियल है, ये एक्स स्क्वायर में है, और ये जो है ये एक्स पावर 4 में है, और ये एक्स क्यूब में है, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों से लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए। प्लस ये जो, अच्छा ये आप देखें इसको थोड़ा सा स्ट्रेंज तरीके से लिखा है, इसको x माइनस एल नहीं लिखा, अलग वी आर यूज्ड टू नो राइटिंग लाइक दैट x माइनस 2। तो आप x माइनस एल भी चूज कर लें तो यू विल एंड अप सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। जरा इस तरह से लिखने का फायदा ये है कि जो हमारा हैमिल्टोनियन है इस सिस्टम का वो क्या है, इसका हैमिल्टोनियन है, अफसा आप बता सकते हैं इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा? क्या? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों आएगा? वैसे हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं भला? गुड, तो इस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाँ, पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाँ नहीं, इसके लिए ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है, नहीं हमने उसकी वैल्यू बताई है जीरो।
इनसाइड, आउटसाइड इन्फिनिट है, लेकिन हमें आउटसाइड वाला पार्ट शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटसाइड इन्फिनिट का मतलब है हमारा वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए, वो वैसे ही हमने इनकोड कर दिया अपने बेसिस फंक्शन के अंदर. Okay, so we don't need to worry about this part now. So the Hamiltonian inside the box is actually just this. क्योंकि इसमें देखें डेरिवेटिव्स हैं और ये माइनस साइन है, तो just to avoid minus sign after derivatives we are putting this minus sign here, but it doesn't really matter. Anyway, so ये जो टर्म इसके साथ ऐड की है, इससे इससे अब ये फायदा हुआ है कि ये दोनों जो हैं ये ऑड फंक्शंस बन गए हैं अराउंड द मिडल पॉइंट. जो ऑड सिमेट्री है वो इनमें आ गई है. और प्लस यू कैन चेक दैट ऑल फोर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है. एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स. नहीं नहीं, उस तरह के तो नहीं बनेंगे. ये कोसाइन है, तो इनमें से कोसाइन कोई भी नहीं है. ये साइन है, साइन भी कोई नहीं है, तो ये इससे ऐसे तो नहीं है. वो हमने जानबूझ के जरा सिमिलर सा चूज किया था, बट दे डोंट हैव टू बी सिमिलर. पहली बात तो ये है कि जब हमने ये मेथड यूज करना तो हमें पता ही नहीं होगा कि सोल्यूशन है क्या. यहाँ तो हमने जानबूझ के वो प्रॉब्लम लिया जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी हमें पता था, कि थोड़ा सा हम इस मेथड को समझ सकें. ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आप फंक्शन चूज करें वो ऑलरेडी सॉल्यूशंस हो. अगर ऐसा है तो फिर तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिस फंक्शन वो हो जो ए जो बाउंड्री कंडीशन सिस्टम की है वो उनको सेटिस्फाई करें. ऑटोमेटिक आप चूज उस तरह से करें, और प्लस आपने ये सिमेट्री और ये ऑड और इवन की कंसीडरेशन जहन में रखनी है. अगर आप सिर्फ बेसिस फंक्शन सारे इवन चूज करेंगे तो जाहिर है उसके जो लीनियर कम्बिनेशन से फाइव बनेगा, जो मर्जी कर ले वो इवन ही होगा, तो वो ऑड स्टेट्स जो हैं उनको कंसिडर नहीं कर पाएगा. और इसी तरह अगर आप सारे ऑड चूज करेंगे तो वो ऑड को नहीं कर पाएगा. तो इसलिए परहैप्स अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इट माइट बी अ गुड आइडिया टू हैव हाफ ऑफ द फंक्शंस इवन एंड हाफ ऑफ द फंक्शन ऑड, जो आपका बेसिस सेट है उसके अंदर. ओके, और अगर फर्ज करें जो आपके सोल्यूशन एट द एंड वो सारे इवन ही हैं, आपका प्रॉब्लम ही ऐसा है, तो नो नीड टू वरी अबाउट के जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली जब कोफिशिएंट फाइंड करेगा सी केस फॉर दोज वेट्स, वो उनको छोटा रखेगा जो सिमेट्री में नहीं होने चाहिए, और जो होने चाहिए आंसर के अंदर जो सिमेट्री उनके क्वेश्चन बनेंगे. नहीं, कोई बात नहीं, उसके जो आंसर है वो ना इवन होगा ना ऑड होगा. आप तो इसलिए मैंने कमेंट दिया है कि इट्स बेटर टू चूज हाफ ऑफ देम इवन हाफ ऑफ देम ऑड. हाँ, वो बेहतर रहेगा. प्लस यू कैन आल्सो चूज फंक्शन दैट डू नॉट हैव एनी डेफिनेट सिमेट्री, डेफिनेट पैरिटी. ठीक है, चलिए जी, हमारे पास फंक्शन आ गए. अब हमने चूंकि प्रॉब्लम फॉर्मुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, तो बेसिकली हमने इस डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व करके W फाइंड करना है. दिस इज व्हाट वी नीड. H11 minus WS11, H12 minus WS12, WS13, Q4. ये है तो थोड़ा ऐसे ही redundant, but let's write it for visual effect. 3 2
ओके, अब देखें इसको हमने सॉल्व करना है W के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि पहले हम ये नंबर जो हैं ये कंप्यूट करें, ये जो S है और H। सो लेट्स स्टार्ट बाय कंप्यूटिंग वन बाय वन। तो पहले हम ये करेंगे, H11 is 0 to L. So this H11 is actually this integral F1 H F1। अगर इसको आप खोल के लिखें तो ये 0 to L F1 of X H1 of X dx, और F1 of X था X into L minus X, और माइनस h का स्क्वायर 2m बाहर लिख लेते हैं, और d स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर x इंटू एल माइनस एक्स डी एक्स। तो ये है एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा एल माइनस टू एक्स, फिर दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस टू। ओके, सो ये टर्म आ जाएगी माइनस टू, यहाँ पे माइनस माइनस टू बल्कि बाहर ले लेते हैं, ये माइनस माइनस से कैंसिल होकर एच का स्क्वायर ओवर एम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स एच का स्क्वायर ओवर टू एम एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर ओवर टू, इसका होगा एक्स क्यूब ओवर थ्री, और फिर ये लिमिट पुट कर दें। ओके, और इसको वैल्यूट करें तो जो आंसर है, लेट मी राइट दैट, वो होगा h बार स्क्वायर l क्यूब 6m। ये आ जाएगा H11। ठीक है साजिद? तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू टू से कैंसिल कर दिया बाकी। हाँ, थैंक यू। ठीक है, अब नेक्स्ट काम है S11 कंप्यूट करना। अब देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा लेबोरियस है, इसीलिए जो मैथमेटिका है वो आपका काम काफी आसान जो है वो कर सकता है। उसमें ये एफ जो फंक्शन है F1 F2 F3 F4, ये तो जैसे मैंने वो पहले फाइल में लिखे थे अब लिख लें। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव जो है उसमें डेरिवेटिव का भी है, लेकिन आप बेशक एक चार फंक्शन और बना लें जिसमें चारों के डेरिवेटिव्स हैं, हाथ से निकाल लें। ठीक है, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट की कमांड है। ठीक है, इंटीग्रेट, उसमें लिमिट दें और दोनों का प्रोडक्ट लिखें, वो इंटीग्रेट करके रिजल्ट दे देगा, क्योंकि सारे इंटेग्रल ही है ना। ठीक है, तो ये नंबर आप वहां से कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा क्लेवर हैं तो आप एक ही दफा एक प्रोग्राम लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर बना के रख सकते हैं, डुअल लूप के अंदर ये सारे जो, हाँ उसमें लूप भी लगा सकते हैं। हाँ बेशक पाइथन में कर लें, लेकिन मैथमेटिक्स में भी आप लूप्स भी लगा सकते हैं, और ये मैट्रिक्स उधर पूरा का पूरा एक गो में जनरेट कर सकते हैं। एनीवे, सो ये F11 जो है इट्स एक्स स्क्वायर एल माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स 0 टू एल, क्योंकि ये x इंटू एल माइनस एक्स एक दफा, फिर x इंटू एल माइनस एक्स दूसरे के लिए, इसको वैल्यूट करें और ये आंसर आ जाएगा L5 ओवर 30। ये दोनों हो गए, फिर H12 निकालें। बाय द वे जो H12 है दिस विल बी इक्वल टू H21, क्योंकि आप चेक कर लें जो जी शार्ट ट्रिक कोई नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे वो ट्रिक इस्तेमाल होगी, तो वो मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरह की चीजों को आपको जहन में रखना पड़ेगा। H22 निकालें, h बार स्क्वायर L7 105m। ये बुक पे सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं आपको, मैं सारे यहाँ पे लिखूंगा नहीं। अच्छा, इसके बाद लेट्स कम टू दिस थिंग। पहले जरा S13 की बात करते हैं। S13 जो है
ये है F1 और F3 का ओवरलैप। एक तो तरीका है कि आप ये इंटेग्रल वैल्यूएट करें। F1 क्या है, x इंटू एल माइनस एक्स। F3 क्या है, x इंटू एल माइनस एक्स इंटू हाफ एल माइनस एक्स डी एक्स। ये इंटेग्रल वैल्यूएट करें, यू विल गेट आंसर 0। ठीक है, लेकिन आप ये आंसर 0 डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि जो इंटीग्रेशन इंटरवल है उसके सेंटर के अराउंड ये फंक्शन इवन है और ये ऑड है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो ऑड होगा, और ऑड फंक्शन का जो इंटेग्रल होता है वो 0 होता है अगर आपका इंटीग्रेशन लिमिट दोनों तरफ इक्वली एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो चूंकि ये ऑड है इन दिस थ्रू द सेंटर ऑफ द इंटरवल, तो इसका इंटेग्रल जो है वो 0 होगा। जी हाँ, इनडेफिनिट भी वैसे 0 होता है अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। नहीं, आप 0 टू एल ही रखें। हाँ, हाँ, लेकिन मैं वो सिमेट्री को थ्रू विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ इंटरवल कह रहा हूँ ना। तो इंटीग्रेशन इंटरवल है 0 टू एल, तो ऑड इवन हमने इंटीग्रेशन के 0 के लिए देखना होता है कि विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द इंटीग्रेशन इंटरवल फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसे अगर आप ये है, अगर आप यहां से यहां तक फंक्शन इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो दिस इज नाउ ऑड विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट से तो ये ऑड नहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ दिस इंटीग्रेशन लिमिट दिस इज ऑड फंक्शन, तो इसका इंटेग्रल जो है वो ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से कैंसिल कर देगा, ये भी 0 होगा। सो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने देखना होता है कि जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है उनके सेंट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट से फंक्शन इवन है या ऑड। नॉर्मली वो लोग वो सहूलत के लिए शुरू से ही प्रॉब्लम इस तरह सेटअप करते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम में ये चीज एक्सप्लॉइट करनी हो ना, तो लेट्स से अगर ये बॉक्स वाला पोटेंशियल है, तो दे विल प्लेस अ बॉक्स विद ओरिजिन एट द सेंटर। ठीक है, लेकिन इसका फायदा ये है कि यू लर्न दिस थिंग, इट डजंट हैव टू बी देयर। ठीक है, अच्छा S1 3 0 है, आप इसी तरह चेक कर सकते हैं S1 4 भी 0 होगा। और साजिद बता सकते हैं कौन कौन सा S 0 होगा? 2 1 0 होगा, क्यों नहीं? 1 और 2 दोनों इवन है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि 1 और 2 इवन है, 3 और 4 ऑड थे। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, 4 3 दोनों ऑड है, तो ऑड का जो प्रोडक्ट है वो इवन होता है, तो वो 0 नहीं होगा। ये आपको वैल्यूट करना पड़ेगा, S4 4 भी 3 4 ये भी करना पड़ेगा। ठीक, तो S जो है वो तो काफी सारे 0 हो जाएंगे। लेट्स नाउ टॉक अबाउट H integrals। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। एक मिनट, हम्म, हाँ, क्योंकि इवन और ऑड फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी ऑड होता है। ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा मुश्किल, आप इसको देखें। अगर लेट्स से आपके पास एक इवन फंक्शन है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें x की जगह पे माइनस, दिस इज इवन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये पुट कर इसके बराबर आता है। जो ऑड होता है वो अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, अगर ये e इंटू ओ है, तो आप देखें कि अगर f में माइनस एक्स पुट करें तो ये आ जाएगा, ये तो इवन पार्ट है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस इज अगेन f।
तो इसका मतलब है कि f जो है वो ऑड है। तो अगर एक फंक्शन हो विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड, तो वो ऑड होता है, ठीक है। और अगर ये दोनों ही ऑड होते हैं, लेट्स से कि आपके पास ये फंक्शन f है विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस, डिफरेंट बट ऑड फंक्शंस, तो अभी इसका अगर f की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां से माइनस निकलेगा, यहां से माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, नाउ दिस इज अगेन f ऑफ x। तो ये फंक्शन जो ऑड फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये खुद इवन है अब, ठीक है। तो यहां पे ये जो है ये इवन और ऑड का प्रोडक्ट था, तो वो ऑड था। ओके, सो लेट्स नाउ वर्क दी हैमिल्टोनियन इंटीग्रल्स, दी एच इंटीग्रल्स। उस पे एक तरीका तो यही है कि आप कंटिन्यू करते जाएं, ठीक है, और सारे जो एच इंटीग्रल्स हैं वो वैल्यूएट करें। लेकिन अगर तो आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं देन परहैप्स दिस इज द बेस्ट वे कि आप अगर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें वैसे ही प्रोग्राम में लिख दें, तो सारे कंप्यूट कर देगा जो भी आता है। बट इफ यू आर डूइंग एन पेपर विद हैंड, तब जैसे ये 4x4 सिस्टम में आपको कितने 32 इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपना जो दिमाग है वो ज्यादा इंटेलिजेंटली यूज करें, तो आप अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे हम जो एक चीज यूज कर सकते हैं वो ये है कि या तो आप हाथ से कंप्यूट करें एंड यू विल सी दैट H13 is actually 0, you can just evaluate it। या आप जो पैरिटी है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने कहा था चैप्टर 7 को ना आप रिव्यू करें, उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, उसमें से एक ये थ्योरम है which says कि if we have two operators which commute with each other, ठीक है। कम्यूट का मतलब है कि ए बी on any state is equal to बी ए। और फर्ज करें कि आपके पास एक स्टेट है जी एम which is the eigenstate of this operator A with some eigenvalue, और एक आपके पास दूसरी स्टेट है which is eigenstate of this operator A with some eigenvalue an, with am and an different, then it can be shown that this is equal to 0। ये देखिए आपके पास दोनों आइगन स्टेट्स हैं ए ऑपरेटर की, और ये ऑपरेटर जो है ये बी के साथ कम्यूट करता है। अगर करता है तो अगर आप बी को इन दो स्टेट्स के दरमियान में रखें तो यू कैन शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। बहुत क्विक और सिंपल सा प्रूफ है, आप चैप्टर 7 में इसका प्रूफ का इसको चेक कीजिएगा। अब कमिंग बैक हियर, जो पैरिटी ऑपरेटर है वो होता है कि यू रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, ठीक है। और अगर आप का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ओरिजिन पे नहीं है, तो एसेंशियली पैरिटी ऑपरेटर मीन अप्लाइंग द मिरर ऑपरेशन एट द सेंटर ऑफ द इंटरवल। बट सो अब जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो चूंकि उसका जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिक है। अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम का जो हैमिल्टोनियन है वो यूं है, ये टर्म जो है ये तो आप ऑलरेडी अंडर पैरिटी इवन है, क्योंकि व्हेन यू चेंज x विद माइनस एक्स दिस dx स्क्वायर, सो नथिंग हैपेंस। और जो पैरिटी है, पैरिटी के साथ कम्यूटेशन है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, इट्स ऑलवेज specified by this potential। अगर ये potential symmetric है तो it mean it commutes with this parity operator। So if this v is symmetric, which in our case is symmetric क्योंकि ये potential यूं है, so this is symmetric if you flip, so it means this parity and Hamiltonian operators commute,
और पैरिटी जो ऑपरेटर है इसके आइगन फंक्शंस होते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। दुनिया के तमाम इवन फंक्शन और तमाम ऑड फंक्शन पैरिटी ऑपरेटर के आइगन फंक्शन है। जो इवन फंक्शन है उनकी आइगन वैल्यू +1 है, यानी am +1 है, और जो ऑड फंक्शन है उनकी आइगन वैल्यू -1 है। इसका मतलब है कि अगर अब एक ऐसा हैमिल्टोनियन हो जो दो ऐसी स्टेट के दरमियान में सैंडविच हो रहा है कि एक स्टेट इवन और एक स्टेट ऑड है, देन अंडर दिस थ्योरम दिस शुड evaluate टू 0 एंड बाय द सेम लॉजिक दिस इज 0 क्योंकि ये इवन है ये ऑड है और दोनों पैरिटी ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस हैं with different eigenvalues, so this must be 0 because Hamiltonian commute with parity operator. अगर हम इसको देखें ना 1D हैमिल्टोनियन को, इस और इसका इसका पैरिटी के साथ कम्यूटेशन चेक करें तो ये टर्म तो कम्यूट करती है बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो कम्यूटेशन है इट ओनली डिपेंड्स ऑन दिस टर्म पोटेंशियल टर्म, और अगर ये सिमेट्रिक है तो देन इट कम्यूट्स विद पैरिटी ऑपरेटर एज वेल। क्योंकि ये dx स्क्वायर है ना, तो व्हेन यू चेंज x विद -x दिस स्टिल रिमेन एज इट इज क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग द लेमैन्स लैंग्वेज, ठीक है। और v ऑफ x जो है ये इसके साथ कम्यूट करेगा अगर ये इवन फंक्शन है, ठीक है, या सिमेट्रिक फंक्शन है। ओके, सो आई स्ट्रांगली एक्चुअली अर्ज यू टू गो थ्रू चैप्टर 7, उसमें इस तरह की छोटी छोटी बातों के जो है वो प्रूफ्स भी गिवन है। सो इफ यू एक्सप्लॉइट दिस थिंग देन h13 is 0, और साजिदा बता सकते हैं कौन कौन सा 0 होगा? h14 भी 0 होगा। So these are all 0, और बाकी जो है वो आपको इंटीग्रल अलबत्ता वैल्यूट करने पड़ेंगे बिकॉज दे आर नॉट 0। और इसका असल में ये जो टर्म्स है सारी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 से and we'll have a determinant of this form. There is something here, something here, something here, 0 0 0 0. इसका एक फायदा तो ये हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट अब इवैल्यूएट करना आसान हो गया, क्योंकि अगर लेट्स से दिस इज सम a b c d e f g h, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है इट्स जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्मॉलर डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि ये ब्लॉक डायगोनल फॉर्म में। आप इसको खोल के भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं। और इसका मजीद ये मतलब है कि इसका ये प्रोडक्ट अगर 0 है तो इट मीन आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। हाँ, दोनों भी हो सकते। सो यहां से इसका मतलब है कि पहला डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, एक बनेगा h11 माइनस ws11, h12 माइनस ws12, h21 माइनस ws21, h22 माइनस w। एक ये इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी फोर थ्री माइनस w43, 44 माइनस 44, ये आ गया।
आप देखें अब इस डिटर्मिनेंट को हम खोलते हैं तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी डब्ल्यू में, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर में, और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो डब्ल्यूज आएंगे वो होंगे 0.125001 एच स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर, और let me call it W1 W2, दूसरा सोल्यूशन होगा 1.293 एच स्क्वायर ml स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो you will get 0.50029 this, let me call W3 W4 2.53, बल्कि इनकी लेबलिंग हम इस तरह से करते हैं, इसको W1 कहेंगे और इसको W2 कहते हैं, और इसको W3 कहते हैं और इसको W4। क्यों भला? क्योंकि हमने लेबलिंग पे डिसाइड किया था कि जब W के सॉल्यूशंस आएंगे तो हम इस तरह से लेबल करेंगे, W1 is less than W2, less than W3, less than W4, ताकि हम इनको ना करस्पॉन्डिंग स्टेट से लेबल कर सकें। तो सबसे छोटा W1 है, उससे बड़ा W2, उससे बड़ा W3, उससे बड़ा W4। यार वो सॉल्यूशन के नाम रखती ना, ये इसके दो आंसर आएंगे ना W के, तो एक को लेट्स से W1 कह दें, एक को W3 कह दें। हाँ, सीक्वेंस आप वैसे तो नाम जो मर्जी दे लें, लेकिन अगर आपने एनर्जी से इनको कंपेयर करना है तो देन हमने ये सीक्वेंस डिसाइड की हुई है, पहले से इस तरह से लेबल करेंगे, ठीक है। अब पहले तो ये है कि लेट्स कंपेयर देम विद द एक्चुअल सॉल्यूशन। एक्चुअल जो ग्राउंड जो एनर्जीज थी ई एन, वो थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 ml स्क्वायर। तो N1 के लिए ये आंसर आता है 1/8, 1/8 इज 0.125 एच स्क्वायर ml स्क्वायर। E2 कितना बनता है? N की जगह पे 2 आ जाएगा, 4/8 इज 1/4 इज हाफ। E3 कितना बनता है? 9/8 कितना होता है? 1.125, और 16/8 इज 2। अब इनको आप कंपेयर कर लें यहां पे। सो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो देखिए कितनी क्लोजली मैच कर रही है जो एग्जैक्ट एनर्जी है। इवन के जो सेकंड स्टेट है 0.5, मैंने असल में ये देखिए थोड़े डेसिमल तक लिखे हैं, ये ज्यादा तक इसलिए लिखे हैं कि अगर 1-2 तक लिखते तो वैसे ही उसके बिल्कुल एग्जैक्ट लगनी थी। जस्ट टू शो यू दैट इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट इट्स प्रीटी क्लोज। अलबत्ता इसमें जो एरर है ना वो इससे थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें एरर आता है 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस पे 1 का, और इसमें एरर आता है 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस पे 3 का, ठीक है। 9 अगर ड्रॉप कर दें तो इसमें एरर ज्यादा, और इसमें ये 1.125 जो है दिस इज यू नो थोड़ा ज्यादा, इससे अब एरर आ गई, और E4 में तो और ज्यादा एरर है, ठीक है। तो जू जू हम स्टेट का नंबर बढ़ता जा रहा है, जो एरर है एनर्जीज के अंदर वो भी बढ़ता जा रहा है, बट दैट्स ओके, क्योंकि अगर मैं एक ही फंक्शन लेता अननोन तो मेरा सबसे ज्यादा एरर इसी में होना था। अब मैंने 4 लिए हैं तो ठीक है, इनमें तो एरर आ गया, लेकिन ये पहली दो काफी अच्छी हैं। अगर आप इनको भी एक्यूरेट करना चाहते हैं तो मे बी आप 3-4 और फंक्शन शामिल कर लें, फिर बाद वाले में ज्यादा एरर होगा, इनमें एरर और कम हो जाएगा। So that's why when people do these simulations on computer, they put millions of terms in the basis function, not because they're interested in computing millions of energy levels, but they're interested in reducing errors as much as they can in the energies that they are most interested in. क्योंकि अगर आप मिलियन लेते हैं तो शायद जो लास्ट वाले 3/4 है मिलियन के, उनमें बहुत ज्यादा एरर होगी, लेकिन जो पहले वाले फ्यू हैं इनमें तो एरर जो है वो फिर कहीं 1000th डेसिमल प्लेस तक चली जाएगी।
So more functions you have, more accurate your results are. लेकिन जो बात है वो यहीं पे खत्म नहीं होती. Let's continue. क्योंकि प्रॉब्लम अभी मुकम्मल सॉल्व नहीं हुआ. Now we have to go back. अब हम इस W1 को पकड़ेंगे और जो हमारा मैट्रिक्स था ये वाला इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. And we have to find C1, C2, C3, C4. So let's go back. So इस W को हर जगह पे W की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. We'll get some value here, 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 something here, into C1, C2, C3, C4 equal 0. इसका मतलब है कि यहां से मेरे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी. ठीक है. हाँ जी, ये इसको सॉल्व करके नहीं, असल में ये सारा तो इधर से आया हुआ है ना. ये डब्ल्यू इन्हीं को सॉल्व करके आए हैं. इसी के ये दो पार्ट थे. जी जी. सो जितने डब्ल्यू हम हमसे निकलेंगे वो हमने वापस इधर आके सब्स्टिट्यूट करने हैं. ठीक है. तो यहां से हमारे पास ये एक सेट ऑफ इक्वेशन आ जाएगा विच इज ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम, C1, C2 इक्वल 0. और फिर यहां से एक सेट आ जाएगा E प्राइम, F प्राइम, G प्राइम, H प्राइम, C3, C4 इक्वल 0. अब ये जो W है वो इसका सोल्यूशन है और इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है इसके सोल्यूशन देखे इससे डिफरेंट है. तो अब इसका मतलब है इस W के ऊपर ये जो मैट्रिक्स है दिस इज नॉट गोइंग टू बी सिंगुलर. ठीक है ना, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन ही नहीं है. तो ये सिंगुलर नहीं होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो C3, C4 का सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट दे आर 0. C3 इक्वल C4 इक्वल 0. अलबत्ता ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हम लिख सकते हैं. लेट मी राइट दैट. अच्छा, बाज लोग जो है वो हो सकता है जब ये कहेंगे कि यार ये सोल्यूशन इसका आया तो डायरेक्टली जस्ट सॉल्व दिस वन, बट यू नो दैट मास्क्स द होल पिक्चर. सो दूसरा पार्ट हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे अब, जैसे आप कह रही थी कि शायद इसी में कर लेते हैं, इसलिए कि उस पर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसके कोफिशिएंट्स 0 है. क्योंकि एट द एंड जब मैंने फाइल लिखना है तो मुझे उसमें सारे कोफिशिएंट स्पेसिफाई करने हैं. अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट सॉल्व कर लेता इधर से तो C1, C2 आते, C3, C4 का कुछ पता ना होता कि क्या है. जी ठीक है. अब ये जो सोल्यूशन है ये इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट करके आया, इसको 0 पुट करके नहीं आया. ठीक है. और इसको अगर आप 0 पुट करें तो क्लियरली दो सोल्यूशन आते हैं ये वाले. तो ये डिटर्मिनेंट 0 है या जब W इतना हो या W इतना हो, बस. तो जब W इतना होगा तो फिर तो ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं है ना. तो इसका मतलब है इस W के लिए ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. हाँ हाँ, W3 के लिए भी वो सिंगुलर होगा. तो जब ये सिंगुलर है तो मैं इसके इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. अगर इसके इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 वेक्टर है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. C3, C4 0 आ जाएगा. ये नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. So essentially this is only one equation, we don't have two equations. So let's write its solution. So
ये असल में इक्वेशन बनती है जब उसमें पुट करें 0.023 C1 माइनस 0.02 C2 L स्क्वायर माइनस 0.06 C1 माइनस प्लस 0.05 C2 इसको। तो ये जो ये वाला सिस्टम है, ये जब ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम इनको पुट करें तो ये जो दो इक्वेशन बनती है वो मैंने लिखी है। ठीक है, मैंने ये थोड़े जरा डेसिमल प्लेसेस का ख्याल नहीं रखा, लेकिन बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये सी का मल्टीपल है। ठीक है, अगर आप इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यू एग्जैक्टली गेट दिस इक्वेशन। सो इट मीन कि इसका जो सोल्यूशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन assume that C1 is some k, which mean that C2 is अगर ये k है तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ 0.023 k और इसको डिवाइड कर देता हूँ 0.02 L स्क्वायर से। So the C2 is 1.133 k over L स्क्वायर। तो मेरे पास C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, और C3 C4 पहले ही मैंने कह दिया कि जीरो है क्योंकि जो उनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। अब जो है वी नो हैव ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन विद अस द अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली दैट phi is equal to C1 F1 C2 F2 C3 F3 C4 F4, but these are zero, so C1 C2 की वैल्यू मैं लिख देता हूं। सो मेरे पास phi आ जाएगा, लेट्स कॉल इट phi 1। C1 कितना है k, k मैं कॉमन ले लेता हूं तो F1 आ जाएगा प्लस 1.133 ओवर एल स्क्वायर F2। ये आ गया मेरा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। जी सर, जी सर। और देखें ये F1 भी सिमेट्रिक है, F2 भी सिमेट्रिक है, तो हमारा जो phi 1 है वो सिमेट्रिक ग्राउंड फंक्शन है। अच्छा, अभी भी ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि k अभी भी अननोन है। ठीक है जी, नॉर्मलाइज कर। सो नाउ वी solve this integral, put it equal to 1 and find k, और k यहां से आ जाएगा 4.4 L power 5/2 and we will have a complete specification for the ground state wave function। और यही काम जो है वो आपको phi 2 के लिए, phi 3 और phi 4 के लिए करना पड़ेगा। एंड यू कैन इजीली चेक कि जब आप ये W यूज करेंगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो फिर इवन होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इस कोफिशिएंट जीरो होंगे। जब वो वाले यूज करेंगे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जीरो होगा और इनसे सोल्यूशन मिल जाएगा। और इनके लिए आपको ऑड फंक्शन मिलेगा जो वेव फंक्शन है, और इनके लिए इवन मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को बजाय इस तरह से सॉल्व करने के शुरू से इस तरह से चलते कि हम अपना बेसिस फंक्शन ही सिर्फ इवन ले लेते हैं, इवन सेट का, तो हमें शायद इतना ज्यादा काम ना करना पड़ता, और हम लेट से दो वेव फंक्शन ही रख लेते हैं, दो बेसिस फंक्शन रख लेते हैं, दो के साथ सिर्फ काम करते हैं। तो लेकिन उसमें फिर हमें जो एनर्जीज और जो फंक्शन मिले वो सारे इवन होने थे। कोई बात नहीं, फिर वो रख लेते अपने पास, फिर हम वो प्रॉब्लम दोबारा से सॉल्व करते। बट लेट्स नाउ हैव अ बेसिस फंक्शन विच इज इंटायरली मेड ऑफ ऑड फंक्शंस। तो फिर हमें वो वेव फंक्शन मिलते जो ऑड के हैं, और उनकी एनर्जी से हमने लेबलिंग करके अंदाजा लगा लेना था कि पहले कौन आएगा और दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा। तो अगर तो आपका जो हैमिल्टोनियन है वो पैरिटी से कम्यूट करता है शुरू में ही, तो एक्चुअली इट्स इवन बेटर कि आप जो अपना बेसिस फंक्शन है उसको इवन और ऑड का मिक्सर ना बनाएं, बल्कि आप शुरू से ही उसको दो पार्ट में कर लें।
और आप एक जो सेट हासिल करेंगे उससे आपको जो इवन फंक्शंस है वो मिल जाएंगे, दूसरे से ऑड मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन यूजुअली स्टैक देम वन बाय वन टू गेट द फुल सॉल्यूशन। और आप बेसिस फंक्शन में इवन ऑड दोनों उसी वक्त रखें व्हेन यू डोंट नो, या जो आपका हैमिल्टोनियन है वो डेफिनेट पैरिटी का नहीं है, कि उसका जो पोटेंशियल फंक्शन है वो इस तरह का है, व्हेन यू रिप्लेस x with minus x you neither get negative sign neither positive sign, but a function which is something else that you don't get the negative sign out, it means that doesn't have a definite parity. So तब आप मिक्स से ही चले जी। कुछ नहीं फर्क, क्योंकि आप इवन लेंगे तो आपके सारी जो इवन स्टेट्स हैं वो कंप्यूट कर लेंगे, और इसमें भी एट द एंड देखें कि जो एक पार्ट है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो हम 4x4 के साथ काम करने के बजाय 2x2 मैट्रिसेस से काम फिर कर लें, ठीक है जी। बिल्कुल। So this is the next part. Okay, why choose a basis function which is just independent? Why not choose an orthogonal set? उससे क्या होगा? That will make our life even easier. Sorry, मैं जरा ये adjust कर लूं. Okay, so that's the next part. That let's choose a basis function such that the overlap integrals fi fj is 1 only when I is equal to j and 0 when I is not equal to j. उस सूरत में क्या होगा, जो आपका एस आई जे है इट विल बी जस्ट डेल्टा आई जे फंक्शन, और जो हम डिटर्मिनेंट इस इक्वेशन का फाइंड कर रहे थे डेल्टा एच आई जे माइनस डब्ल्यू एस आई जे इज इक्वल टू 0, उसकी बजाय वी विल बी जस्ट वर्किंग विद दिस थिंग। और अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो दिस एसेंशियली मींस एच सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, ठीक है। ये अगर आप वो वहां पे चले जाए जहां पे हम मैट्रिक्स वो आई की फॉर्म में लिख रहे थे, बेसिकली उसमें था एच सी इन टू डब्ल्यू एस इन टू सी। तो अगर आपका एस जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, then that S goes away and you just have WC, or you're already familiar with this type of equation. These are eigenvalue equation. अगर क्या आप हो सकता है W के बजाय lambda लिखे जाने से familiar हो, but it's exactly the same thing. So if you choose an orthonormal basis set, essentially what you are going to do then is find the eigenvalues of this H matrix and the eigenvectors of this H matrix. So this problem essentially then reduces to the problems of finding eigenvalues and eigenvector of a matrix. Just उससे पहले अब आपने ये जो मैट्रिक्स H है उसके एलिमेंट्स भी कंप्यूट करने हैं, and that is actually one of the ways in which you can conceptualize for example अगर आप एक एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप यूं कर सकते हैं कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन एटम है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं यू कैन यूज देम एज अ बेसिस फंक्शन because they form an orthonormal set, and by using them as orbital basis function you can try to find the eigenstates and eigenenergies of multi-electron atoms, which will of course be superpositions of those orbitals. कि हो सकता है कि अब जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ ऑर्बिटल्स ना हो बल्कि उनका कोई लीनियर सुपरपोजिशन हो। और फॉर्चुनेटली काफी सारे जो अब कंप्यूटिंग पैकेजेस हैं उनमें जो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर फाइंड करने के एफिशिएंट एल्गोरिथम मौजूद हैं। ऑल यू हैव टू डू जस्ट कॉल द सबरूटीन एंड स्पेसिफाई द मैट्रिक्स बिफोर दैट।
Any questions or comments on this method? चलें गुड। तो इस वीक में आई विल सेंड अनदर होमवर्क, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि होमवर्क हो सकता है थोड़े से लेबोरियस हों, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 से ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉब्लम थोड़े से लंबे हो सकते हैं ये वेरिएशन मेथड में, क्योंकि जब हम बेसिस फंक्शन बढ़ाएंगे तो जो काम है वो थोड़ा बढ़ जाता है। You have the liberty to use any computing package अगर आप कर सकते हैं to compute integrals and matrices and these things if you know like. लेकिन problem ऐसे होंगे कि you might even be able to do them on paper without computer as well. Okay, thank you. जी जी